نیر مسعود کی کہانی آکلٹ میوزیم۔ اگر یہ سب حقیقت میں ہوا ہوتا تو مجھ کو یہ فکر نہ ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ حقیقتوں پر میرا اختیار نہیں، اختیار تو خوابوں پر بھی نہیں، لیکن خواب میری ذاتی ملکیت ہے، اور اگر میں خواب میں کچھ دیکھتا ہوں تو خواہ میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، مگر یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں نے یہ سب کیوں دیکھا۔ لیکن یہ خواب جو میں نے دیکھا، اس کی ہر بات میری سمجھ میں آ گئی، صرف یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب میں نے کیوں دیکھا۔ اور یہ تو بالکل ہی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جو خواب میں میرا سب سے پرانا اور سب سے چہیتا دوست تھا اور جو میرے دیکھتے دیکھتے معدوم ہوا، اس کا حقیقت میں وجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو پہلی اور ابھی تک آخری مرتبہ خواب ہی میں دیکھا۔ وہ میری اور اپنی یادوں کا ایک سلسلہ اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن وہ یادیں اب مجھ کو یاد نہیں۔ میں اس کا نام لے لے کر اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن جاگنے کے بعد مجھ کو یہ تک یاد نہ رہا کہ اس کا نام کیا تھا۔ شاید اسی لیے یہ خیال مجھے کئی دن تک آتا رہا کہ یہ خواب مجھ کو نہیں، اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلا تھا۔ سامنے سواریوں کا سلسلہ تھا اور میں سڑک پار کرنے کے لیے اس کے تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن آسمان پر چھوٹی چھوٹی بدلیاں بار بار اسے دھندلا رہی تھیں۔ کسی کسی بدلی کے ساتھ ہلکی سی چھدری چھدری بارش بھی ہو جاتی اور سرمئی سڑک پر کالی چتیاں سی پڑ کر دم بھر میں غائب ہو جاتی تھیں۔ میں نے آسمان پر نظریں دوڑائیں۔ شمال مشرقی افق سے گھنے بادل اٹھ رہے تھے، اسی سمت میرا مکان تھا۔ کچھ دیر میں تیز بارش شروع ہو جائے گی، میں نے سوچا، اور اندازہ کیا کہ اگر ابھی روانہ ہو جاؤں تو بارش کا زور بندھنے سے پہلے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ سواریوں کا سلسلہ کچھ تھم چلا تھا۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی نے زور سے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ آواز گیروے رنگ کی ایک بے حیت عمارت کی طرف سے آئی تھی، جو ریلوے اسٹیشن کی کوئی نئی توسیع معلوم ہوتی تھی۔ عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس کی چھت پر لوہے کی سریاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ داخلے کے اونچے اور تنگ دروازے کے اوپر نصف دائرے کی شکل میں بہت آگے تک بڑھا ہوا چھجا بنایا گیا تھا۔ وہ اسی چھجے کے نیچے برساتی پہنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا، وہ بھی کئی قدم آگے بڑھایا۔ میں نے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھے چمٹا لیا۔ ظالم، اتنے دن بعد ہاتھ آئے ہو، اور کیا موقع سے، اس نے ہنستے ہنستے کہا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہی پیشہ پرانا۔ اور ہمارے پیارے لوگ کیسے ہیں؟ کون کون زندہ ہے، کون کون نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، تم اسی دنیا میں ہو یا آن جہانی ہو گئے؟ اگر تم آن جہانی ہو گئے ہو تو مجھے بھی آن جہانی سمجھو، میں نے کہا، مگر زندہ یا مردہ آج کل کہاں پائے جاتے ہو؟ اب یہیں آ گیا ہوں۔ اور سب گھر والے؟ تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں، انہی کو لینے آیا ہوں، گاڑی لیٹ ہے۔ اس نے برساتی اتار کر ایک ہاتھ پر ڈال لی اور بولا، ہاں تو اب سناؤ، کیا سنو گے؟ تمہیں پتا ہے اب تم ہی میرے سب سے پرانے دوست ہو، اس نے کہا، اور ایک ساتھ کئی پرانے قصے چھیڑ دیے۔ اس کے بعد دیر تک ہم لڑکپن کی مشترکہ شرارتیں اور شروع جوانی کی بے وقوفیاں یاد کر کے اور ایک دوسرے کو ان کی تفصیلیں یاد دلا دلا کے کبھی ہنستے کبھی اداس ہوتے رہے۔ اچھا، پرانی باتیں بہت ہو لیں۔ آخر میں نے کہا، اب حال پر آ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ سرکاری افسر ہوں۔ سرکاری افسر، اس نے مصنوعی غرور کے ساتھ گردن اکڑا کر کہا۔ محکمہ صحت، تو بیمار کیوں نظر آ رہے ہو؟ دواؤں سے سروکار جو رہتا ہے، مذاق نہیں، ہارا ہوا آدمی بیمار ہی نظر آتا ہے۔ اب یہ اپنی روداد شروع کرے گا، میں نے سوچا، اور وہ کہنے لگا، سرکاری ہسپتالوں میں دواؤں کی خریداری کا کاروبار جانتا ہوں، میں نے کہا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، ہم سے مطلب جانتا ہوں، میں نے پھر کہا، سمجھدار ہو گئے ہو، اس نے کہا۔ کچھ دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان ہسپتالوں کو دوائیں ہمارے ذریعے فراہم کی جائیں۔ یہ نیا طریقہ اختیار کرنے کا اصل مقصد جو پورا نہیں ہوا۔ پورا کیوں نہیں ہوا؟ سنے جاؤ۔ اصل مقصد یہ دکھانا تھا کہ ہم پرانے طریقے کی خرابیوں سے واقف ہیں، اس لیے اسے بدل رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہسپتالوں کو منطقوں میں بانٹا گیا۔ شمالی منطقہ میرے ذمے ہوا، سال بھر تک وہاں رہا۔ آخر ایک محرر سے ہار کر یہاں آ گیا ہوں۔ محرر؟ میں نے پوچھا، تمہارے محکمے میں؟
मुहर्रिर ही समझो, जो दवाएं हमारे यहाँ आती हैं और जो हमारे यहाँ से अस्पतालों को जाती हैं, ये लोग उनकी फहरिस्त बनाते हैं बस। कई हैं, हाँ वो बोला, लेकिन उनमें से एक। वो रुक गया और दांत पीसने लगा। वही जिसने तुम्हें हरा दिया। जितनी मेरी महीने भर की तनख्वाह है उससे 12 गुनी रकम वो एक दिन में पीट लेता है। एक दिन में? मैंने पूछा। तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह? जी मुहर्रिर जी, और मेरा मिजाज तुम जानते हो। मैंने कहा उस्ताद ये तो नहीं होने दूंगा। कुछ रोक थाम की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसका तबादला कर दिया। जो उसने रुकवा दिया, इस पर भी मुझे जिद आ गई। वो इस बात में सर हिला के बोला, नीचे से ऊपर तक पूरे महकमे को हिला कर रख दिया। और इसका हासिल ये कि जब मैंने उसके तबादले के लिए बहुत जोर लगाया तो उसने मेरा तबादला करा दिया। मुहर्रिर ने? यस सर, उसने कहा और हारा हुआ नजर आने लगा। अलबत्ता मुझे तरक्की देकर यहाँ भेजा गया है, उसी मुहर्रिर की सिफारिश पर। क्या अजब, वो बोला और फिर दांत पीसने लगा। वो मुहावरे में नहीं, हकीकत में दांत पीसता था। दांत पीसना से मेरा मतलब है वो निचले और ऊपरी दांतों को आपस में रगड़ने लगता था। मुझे रगड़ की हल्की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन एक मुहर्रिर का इतना इख्तियार, ऊपर वालों का, हम ही लोगों का दिया हुआ। तुम्हें इस कारोबार की खबर नहीं? सबको उनका हिस्सा पहुंचता है। रकम और तोहफे और औरत। औरत भी चलती है? कहाँ नहीं चलती। मेरा मतलब है तुम्हारे महकमे में भी, मेरे महकमे में भी। जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ औरत चलती है। चलती क्या है, चलाई जाती है। तुम पर नहीं चलाई गई। सब मेरा मिजाज जानते हैं, उसने कहा और फिर हारा हुआ नजर आने लगा। मैंने उधर से उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा, गाड़ी कितनी लेट है? उसने कलाई ऊंची करके घड़ी देखी और बोला, अभी खासी देर है, हमारे यहाँ की गाड़ियाँ भी। वो रुक गया और फिर दांत पीसने लगा। और तुम्हारी वो? मैंने उधर से भी उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा, जिसे तुमने हमेशा मुझसे छुपाए रखा। क्या हाल है उसका? उसने आंखें थोड़ी मींच लीं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, वो उसकी शादी मुझसे पहले ही हो गई थी। और तुमने उसकी शादी का गम कितने दिन किया? 1 दिन भी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बोला, इनकार मेरी तरफ से हुआ था, फिर गम करना उसूलन गलत बात थी। तो तुम्हारे गम भी तुम्हारे उसूलों के पाबंद हैं? मैंने पूछा। ये बात तुम बेउसूलों की समझ में नहीं आएगी, उसने जरा बदमज़गी के साथ कहा। फिर उसी जमाने में मेरी अपनी शादी का मामला उलझ गया था। किस्सा तुमको मालूम है, कुछ इस वजह से भी। अलबत्ता जब अचानक उसके मरने की खबर आई। वो मर भी गई? मैंने पूछा। कब? शादी के थोड़े ही दिन बाद, उसने बताया। कपड़ों में आग लग गई थी। बुरी मौत। मैंने सोचा, जलकर मरने का तसव्वुर किया। फिर अपना ध्यान उधर से हटाने के लिए पूछा, तुमने कहा था तुम्हें तरक्की देकर यहाँ? हाँ, यहाँ एक नया इदारा कायम किया गया है जो मुल्क भर में तैयार होने वाली दवाओं के फॉर्मूले और नमूने महफूज रखेगा। नमूने भी? मैंने ताज्जुब से पूछा। ये तो बहुत हो जाएंगे। बड़ा इदारा है भाई। और ये है कहाँ? अभी बन रहा है। मगर है कहाँ? जहाँ तुम खड़े हो, उसने कहा और कुछ फखरिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैंने इमारत के तंग ऊंचे दरवाजे को देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर फिजा तारीक तारीक सी थी, इसलिए कि बाहर अब आसमान बादलों से ढक गया था। ये है तुम्हारा इदारा? मैंने पूछा। मगर इसमें कितनी गुंजाइश होगी? ज़रूरत भर की तो होना ही चाहिए, वो बोला। मैंने भी अभी इसे अंदर से नहीं देखा, कल ही तो पहुंचा हूं, अभी चार्ज भी नहीं लिया है। फिर वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने छज्जे के बाहर मोटी मोटी बूंदों को सुस्ती के साथ गिरते देखा। फिर दोस्त की तरफ देखा। वो एक बार फिर कलाई ऊंची करके घड़ी देख रहा था। गाड़ी आने में अब भी देर है, उसने कुछ देर बाद कहा। चलो जब तक यहीं का काम देख लिया जाए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम एक के बाद एक दरवाजे में दाखिल हुए। सामने लंबी सी तंग राहदारी थी, जिसके लिए उसकी ऊंची छत के बीच में जड़े हुए तन्हा बल्ब की रोशनी कम पड़ रही थी। दरवाजे के करीब ही मोटे पायों की एक मेज थी। दोस्त ने अपनी बरसाती मेज पर रख दी और इधर उधर देखा। राहदारी के दूसरे सिरे पर बाएं तरफ कहीं से तेज रोशनी आ रही थी, जिसकी जर्दी पर धूप का गुमान हो सकता था, मगर उधर बिल्कुल खामोशी थी। अलबत्ता दाहिनी तरफ छोटे छोटे दरवाजों की कतार के पीछे से
कुछ ठोकने पीटने और भारी चीजें इधर से उधर खिसकाने की आवाजें आ रही थीं। हम झुककर एक दरवाजे में दाखिल हो गए। यहाँ राहदारी से कम रोशनी थी, लेकिन इतना नजर आ रहा था कि ये नीची छतों वाले कमरों का एक बेतरतीब सिलसिला है और सब कमरों के दरवाजे दूसरे कमरों में खुलते हैं। अंदर हब्स बहुत था और रोशनदान कहीं नजर नहीं आता था। यहाँ तो तुम्हारा दम घुट जाएगा, मैंने कहा। हवा का कुछ इंतजाम कराओ। वो भी होगा, उसने कहा। सब होगा, कुछ तो किया ही जाएगा। अभी तो खैर, चलो तेजी से एक चक्कर लगा लिया जाए। हमने तेजी से चक्कर लगाया। ज्यादातर कमरों के फर्श पर लकड़ी के लंबे लंबे बक्स आड़े तिरछे रखे हुए थे। कुछ बक्स इधर से उधर खिसकाए जा रहे थे और कुछ को हथौड़ियों वगैरह की मदद से खोला जा रहा था। काम करने वालों के चेहरे साफ नजर नहीं आते थे, रोशनी भी कम थी और वो लोग भी सर झुकाए हुए अपने अपने काम में मुनहमिक थे। किसी किसी कमरे में मेज कुर्सी भी नजर आई। हर मेज पर लोहे की जालीदार कश्ती रखी थी और कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी कश्ती में से कोई चीज उठाता, फिर अपने सामने रखे हुए कागजों के पुलंदे पर झुककर कुछ लिखता और चीज को कुर्सी के पहलू में जमीन पर डालकर कश्ती में से दूसरी चीज उठा लेता था। हम कई मेजों के करीब से होकर गुजरे, लेकिन किसी आदमी ने नजर उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा। बड़ा फर्ज शनास अमला है तुम्हारा, मैंने एक मेज के करीब से गुजरते हुए सरगोशी में कहा। अभी मैंने चार्ज नहीं लिया है, दोस्त ने भी सरगोशी में जवाब दिया और रुक कर जालीदार कश्ती में से कोई चीज उठा ली। कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने फिर भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि कागजों के पुलंदे पर और ज्यादा झुक गया। जरा इसे देखना, दोस्त ने कश्ती में से उठाई हुई चीज को कुछ देर तक गौर से देखने के बाद मेरे हाथ में दे दिया। कम रोशनी में वो मुझे ठीक से नजर नहीं आई, कुछ सूखी हुई झिल्ली की गोली सी थी। मुझे उससे कराहत महसूस हुई। उसे कश्ती में डालकर मैंने दोस्त से कहा, आगे चलो। हम तेज तेज चलते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कमरे में जाते रहे। कई कमरों में दीवारों से मिली मिली ऊंची पतली मेजें थीं और हर मेज पर कुछ न कुछ सामान रखा था जो धुंधली रोशनी की वजह से ठीक से पहचान में नहीं आता था, और मेरे दोस्त को इस सामान से कोई दिलचस्पी भी नहीं मालूम होती थी। वो मेरा हाथ पकड़े, गर्दन झुकाए चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था, और अगर मैं किसी मेज के पास रुकने लगता तो वो मेरे हाथ को हल्का सा झटका देकर मुझे आगे बढ़ा देता था। फिर भी मैंने कुछ सामान देख लिया। एक मेज पर मुझको परिंदों के खुश्क पंजे नजर आए, एक पर जंग आलूद कीलें, एक पर चौपायों और दरिंदों के टूटे फूटे दांत ढेर थे। एक मेज पर जंगली पौधों की मुरझाई हुई पत्तियां और शाखें थीं। उनके करीब ही किसी भारी लकड़ी की कुल्हाड़ियां और चाकू थे। उनके फल भी उसी लकड़ी के थे। तरह तरह की अंगीठियां भी बहुत थीं, जिनके ऊपर मिट्टी की रकाबियों में मुख्तलिफ शक्लों के बीज और मैले मध्यम रंगों के सफूफ छोटी छोटी ढेरियां बनाकर रखे गए थे। शफ्फाफ शीशे के बर्तन भी कई मेजों पर आगे पीछे रखे नजर आए, लेकिन ये इतने पास पास थे कि अलग अलग इनकी वज़ाक़ता का अंदाजा नहीं होता था। हब्स बहुत बढ़ गया था। मैंने दोस्त से कहा, अब यहाँ से निकल चलो। कुछ देर चलकर मैंने उससे कहा, तुम्हारी ये जगह मेरी समझ में नहीं आई। वो कोई जवाब दिए बगैर मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि हम फिर राहदारी में आ निकले। दरवाज़ा बाएं हाथ पर बिल्कुल करीब था। मुझे दरवाजे के बाहर सड़क का खुला हुआ मंजर दिखाई दिया। मैंने उधर कदम बढ़ाया ही था कि मेरे हाथ पर दोस्त के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई और वो मुझे राहदारी के दाहिने सिरे की तरफ ले चला, जिधर धूप की रोशनी आ रही थी। सिरे पर पहुंचकर हम रुक गए। आगे दीवार थी। बाएं हाथ पर एक सहंची सी थी जिसमें कुछ काठ कबाड़ भरा हुआ था। उसकी ऊंची छत के आंकड़े से एक लंबी जंजीर लटक रही थी, जिसके सिरे पर तेज जर्द रोशनी वाली कंदील बंधी हुई थी। हम दोनों ने उसे करीब जाकर देखा। वो हमारे सरों को छू रही थी। ये इतनी नीची क्यों रखी गई है? मैंने अपने आप से सवाल किया और दोस्त की तरफ देखा। वो खामोश रहा। फिर उसने मेरा हाथ दबाया और सहंची के मुखालिफ समत इशारा किया। उधर एक और राहदारी नजर आई जो कुछ दूर सीधी जाकर एक तरफ घूम गई थी। ठीक है, मैंने कहा, चलो इसे भी देख लेते हैं। हम उस बगली राहदारी में दाखिल हुए। चंद कदम तक कंदील की रोशनी ने हमारा साथ दिया, लेकिन मोड़ आने पर सामने बिल्कुल अंधेरा नजर आया।
आगे शायद रास्ता नहीं है। मैंने उससे कहा, चलो वापस चलते हैं। हम वापस हुए। अब फिर सामने कंदील नजर आ रही थी। हम तेज कदमों से सहनची की तरफ बढ़ रहे थे कि दोस्त का हाथ पसीने में डूबा और फिसलकर मेरे हाथ से निकल गया। मैं कंदील के नीचे पहुंचकर दोस्त की तरफ मुड़ रहा था कि एक साया सा मेरे और उसके बीच में आ गया। एक औरत मेरे दोस्त के आगे भिखारनों की तरह हाथ फैलाए खड़ी थी और उसकी परछाई दोस्त के कदमों को छू रही थी। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। बदन की बनावट से वो जवान और चुस्त नजर आती थी, लेकिन उसका लिबास बोसीदा था और ऐसा मालूम होता था कि किसी हल्के तेल में डुबोकर निकाला गया है, या शायद वो कपड़ा ही इस किस्म का था। मुझे कुछ कुछ ख्याल आया कि मेरे लड़कपन में इस तरह का एक कपड़ा आता था जिसे औरतें पसंद करती थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने औरत को डांटा। बाहर जाकर मांगो। लेकिन वो उसी तरह मेरे दोस्त के आगे हाथ फैलाए खड़ी रही और दोस्त चुपचाप उसे देखता रहा। मुझसे वो बेखबर मालूम होती थी। कुछ इंतजार करने के बाद मैंने औरत को फिर डांटा। अब वो मेरी तरफ घूम गई और मैंने उसे कंदील की तेज जर्द रोशनी में सामने से देखा। उसका बदन बहुत सडोल था, नाक नक्शा भी बुरा नहीं था, लेकिन उसकी जिल्द की रंगत ऐसी थी जैसी आग के पास काम करने वालों की हो जाती है। कुछ देर तक वो मेरी तरफ गौर से देखती रही, लेकिन इस तरह जैसे मैं कोई जिस्म नहीं, सिर्फ आवाज हूं। देखने में वो कुछ उदास और कुछ डरी डरी मालूम होती थी, लेकिन शायद उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी थी, इसलिए कि उसकी आंखों में न उदासी थी न खौफ, बल्कि उन आंखों को देर तक देखने से खुद मुझे कुछ उदास कर देने वाला खौफ सा महसूस हो सकता था। मैंने बगली राहदारी के मोड़ पर नजरें जमा दी और औरत को फिर डांटा। सुना नहीं? बाहर जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? इसके बाद मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वो कोई जवाब दिए बगैर दोस्त की तरफ घूम गई, जो उसी तरह बेहरकत खड़ा उसे देखे जा रहा था और मुझको शायद बिल्कुल फरामोश कर चुका था। कुछ करना चाहिए, मैंने सोचा। औरत की तरफ बढ़ा, फिर उससे जरा कतरा कर गुजरता हुआ दोस्त के करीब पहुंच गया। उसका हाथ पकड़कर मैंने अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से औरत को भाग जाने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटी। कंदील उसके पीछे थी और जर्द रोशनी उसके लिबास में से छन रही थी। उसका नाक नक्शा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जहां हम खड़े थे वहां से वो ऐसी मालूम हो रही थी जैसे किसी बिरहना निस्वानी मुजस्समे पर बारीक कपड़ा डाल दिया गया हो, और उस मुजस्समे में एक मुबहम सा बुलावा था, बल्कि उसकी परछाई में भी बदी से भरी हुई एक कशिश थी। मैंने खुद को उस कशिश के असर में आता महसूस किया और उससे बचना जरूरी समझा। दोस्त का हाथ छोड़कर मैं फिर कंदील के नीचे आ गया। वहां खड़े खड़े एक तमाशाई की तरह मैंने देखा कि औरत सुबुक कदमों से मेरे दोस्त की तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने कुछ कुछ बेहयाई के अंदाज में अपना बदन थोड़ा आगे को फेंक कर दोस्त के बदन से टकरा दिया और उसको अपने आगे आगे बढ़ाती हुई बगली राहदारी में दाखिल हो गई। गर्दन मोड़कर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, उसी तरह जैसे किसी आवाज की समत का पता लगा रही हो। फिर उसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। मुझे उसकी पीठ पर कंदील की रोशनी का जर्द इनेकास नजर आया। फिर वो दोनों राहदारी के अंधेरे मोड़ में दाखिल होकर मेरी निगाहों से गुम हो गए। मैं देर तक अपनी जगह बेहरकत खड़ा रहा, फिर बेदिली के साथ आगे बढ़ा। बगली राहदारी के मोड़ पर पहुंचकर मैंने दूर तक गए हुए तंग अंधेरे को देखा और वापस पहले वाली राहदारी में आ गया। सामने अध खुले दरवाजे से सड़क का मंजर अब भी दिखाई दे रहा था। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी नज़र मेज पर रखी हुई बरसाती पर पड़ी। मैंने उसे उठाकर हाथ पर डाल लिया और दरवाजे से निकलकर छज्जे के नीचे, फिर वहां से भी निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। तेज धूप निकल आई थी। सुरमई सड़क भारी बारिश से धुलकर सियाह हो गई थी और उससे हल्की हल्की भाप उठ रही थी। आसपास कुछ हलचल थी जैसी स्टेशन पर किसी मुसाफिर गाड़ी के पहुंचने के बाद होती है। सवारियों का सिलसिला था और मैं सड़क पार करने के लिए उसके थमने का इंतजार कर रहा था कि कुछ फासले से किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा। स्टेशन के सामने फुटपाथ पर मेरे दोस्त की बीवी और बच्चियां खड़ी थीं। करीब ही उनका सामान रखा था। सबके चेहरों पर लंबे सफर की थकान थी। फिर भी कुछ देर तक वो सब हंस हंस कर मुझसे बातें करती रहीं। बीवी ने बताया कि दोस्त का तबादला यहाँ का हो गया है और वो इन लोगों से एक दिन पहले रवाना हो गया था।
انہوں نے یہیں پر ملنے کو کہا تھا، اس نے ذرا تشویش کے ساتھ بتایا۔ انہوں نے یہیں پر ملنے کو کہا تھا، اس نے ذرا تشویش کے ساتھ بتایا۔ ہم دیر سے کھڑے ہیں، معلوم نہیں کہاں گئے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا رہا۔ بچیاں شہر کی سیرگاہوں کے بارے میں مجھ سے معلوم نہیں کیا کیا پوچھ رہی تھیں، اور اس مرحلے پر مجھے ہلکا ہلکا احساس ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب میں نے کہاں سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ دوست کی بیوی اب روحانسی ہو چلی تھی اور متجسس نظروں سے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی نگاہیں میرے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اپنے ہاتھ پر دوست کی برساتی ڈالے ہوئے ہوں۔ اس کی بیوی نے برساتی پر سے نظریں ہٹا کر پھر میری طرف دیکھا اور اب قریب قریب رو کر پوچھا، سچ مچ آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ بچیاں بھی قریب آ کر میرے جواب کا انتظار کرنے لگیں اور میں دیر تک سوچتا رہا کہ انہیں کیا بتاؤں، پھر یہ سوچتا رہا کہ انہیں کیا نہ بتاؤں، اور گیلی سڑک سے اٹھتی ہوئی بھاپ گھنی ہوتی گئی۔ اب جاگنا چاہیے۔ آخر میں نے خود کو بتایا اور آنکھیں کھول دیں۔